I'm back with another video on common phrasal verb. And this time, the common phrasal verbs that are utilized with work are to be discussed in this video. So, first one is work on. Alright, so let's see what is the meaning of work on, and then we will check out different examples through which you will get the comprehensive understanding of the verb. Work on, that means to work on someone, किसी चीज पे काम करना, that is work on. To try to persuade or influence someone, किसी को मनाना या किसी को influence करना, that is also work on. To work on something or to spend time working to produce or improve something. That means किसी चीज पे काम करना, time लगाना and ultimately produce or improve something. कुछ produce करना और या कुछ improvement लेके आना किसी चीज में. चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. You have 2 weeks to work on your project. तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. Alright, to work on, that means to work on something, right? He spent 2 years working on his novel. उसने 2 साल लगाए. He spent 2 years अपनी नॉवेल पे काम करने के लिए, right? I know it's hard to work on my dad, but I will try. अब यहाँ पे work on किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? To persuade, है ना? आप किसी को मनाना चाह रहे हो. So I know it's hard to work on my dad. मुझे पता है मेरे फादर को या मुझे अपने डैड को मनाना इतना आसान नहीं है. It's hard, but I will try. But मैं कोशिश करूंगा या मैं कोशिश करूंगी. Alright? Work out. The next one is work out. एक तो होता है हम वर्कआउट पे जा रहे हैं. बहुत कॉमनली यूटिलाइज्ड ये सेंटेंस हमारा रहता है that I'm going for my workout, right? अब वर्कआउट को और किसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हम यूज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं. सबसे पहला तो जो हमारा कॉमनली यूटिलाइज्ड है क्या है? एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी इन शेप, है ना? एक्सरसाइज करना ताकि आपकी बॉडी शेप में रहे. सेकेंड, टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे. किसी चीज को एक सक्सेसफुल मैनर में डेवलप करना, वो भी क्या है? वर्कआउट. एंड देन another one is to find a solution to something. किसी चीज का solution निकालना, that is also workout. चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इनका elaborative versions देखते हैं. I work out every day. I work out every day. मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ. करेक्ट? सो वर्कआउट यहाँ पे हो गया आपका किससे लेता हुआ? एक्सरसाइज को रेफर करता हुआ. Now, my new strategies didn't work out. That means didn't succeed, है ना? तो हमने कहा था ना to develop in a successful manner, तो वो शायद successful manner में नहीं develop हुआ. तो आपने क्या बोला? My new strategies didn't work out. वो काम नहीं करी, right? We need to work out how we are going to rescue him. हमें इस चीज का solution निकालना होगा कि हमें उसे कैसे बचाना है. So we need to work out. That means we need to find a solution for this. So this is how you can use work out. Next one, work up. Work up means to develop a particular feeling with some effort. कोई feeling develop करना with some efforts. चलिए देखते हैं कैसे. She tried to work up her courage to join the beauty pageant. उसने अपना अपना करेज बढ़ाने की कोशिश करी. She tried to work up her courage. Basically, she tried to develop that courage to join the beauty pageant. तो उसने efforts डाले उसके अंदर, right? We need to work up his enthusiasm for going on this trip. हमें उसको थोड़ा सा enthusiastic करना पड़ेगा. कहाँ? किसके लिए? इस ट्रिप पे ले जाने के लिए. होता है ना कई बार सारे फ्रेंड्स मान रहे होते हैं और एक फ्रेंड होता है वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना. तो आप क्या करते हो? उसको मनाते हो, उस पे एफर्ट्स डालते हो और वो फीलिंग डेवलप करते हो, यार तू भी एक्साइटेड हो जा, हम यहाँ जा रहे हैं. करेक्ट? सो दैट इज हाउ इफ यू यूज वर्क अप, देन
This can be a sentence like we need to work up his enthusiasm for going on this trip. Now, how can I work up my energy for such a boring job? मतलब मैं कितने एफर्ट्स डालूं, कैसे मैं एक की फीलिंग लेकर आऊं कि हाँ भाई बहुत अच्छी जॉब है, मैं कैसे वो एनर्जी लेकर आऊं? तो वर्क अप माई एनर्जी है यहाँ पे, टू डेवलप अ पर्टिकुलर फीलिंग विद सम एफर्ट. तो ये एफर्ट क्या है? वर्क अप. हाउ कैन आई वर्क अप माई एनर्जी फॉर सच अ बोरिंग जॉब? है ना, इतनी बोरिंग जॉब के लिए कैसे मैं वो एनर्जी डेवलप करूं? करेक्ट. सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं वर्क अप. नाउ नेक्स्ट इज वर्क थ्रू. वर्क थ्रू मीन्स to deal with something step by step, especially when it takes time and effort. किसी चीज के साथ डील करना स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली जब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या बहुत ज्यादा एफर्ट डिमांड कर रही है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस लार्ज फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वी विल वर्क थ्रू इट टुगेदर. हम इसे इकट्ठे साथ देख लेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं. डोंट वरी अबाउट दिस लार्ज फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वी विल वर्क थ्रू इट टुगेदर. क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा, तो हम उसको विल डील इट. ओके, विल डील विद इट टाइमली स्टेप बाय स्टेप. So this is how you can use we will work through. The fact that I had to work through my illness alone was terrible. The fact that I had to work through मतलब मुझे सारी मेहनत खुद करने पड़ी, वो भी अकेले, और जब मैं बीमार था वो फीलिंग बहुत टेरिबल थी. है ना, जब आपको अकेले कोई चीजों को फेस करना पड़ता है ना, और आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं इसके अंदर अपने आप को रिकवर करने के लिए, है ना. कई बार एक सिचुएशन आती है जब आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपके खुद के एफर्ट्स उसमें नहीं लग पाते हैं, बट देन क्योंकि आप बीमार हैं, आपको सही होना है, तो वो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं. बट जो फीलिंग आती है ना, तब वो बहुत टेरिबल होती है, और जब आप लोनली फील करते हैं ना, तो वो बहुत टेरिबल फीलिंग रहता है. इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द फैक्ट दैट आई हैड टू वर्क थ्रू माय इलनेस अलोन वाज टेरिबल. नाउ having worked through all their problems together, they got married last summer. So finally उनकी शादी हो गई, सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने साथ में हैंडल करी. work through the problems, they basically worked through the problems. So it required time, it required efforts, and finally they got married. So these are the examples for work through. Work off. To get rid of a strong feeling by engaging in some physical activity. कई लोग होते हैं, उनको जब बहुत गुस्सा आता है ना, they prefer working out. जिम चले गए, है ना, जिम में सारा गुस्सा निकाल लिया. तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या कह रहे हैं, हम यूज कर सकते हैं वर्क ऑफ. ऑलराइट. तो जब आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? आई एम वर्किंग आउट, है ना. अभी हमने पिछली स्लाइड्स में इसको देखा वर्क आउट, बट यहां पे आप इसको बोलेंगे वर्क ऑफ. वर्क ऑफ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी आर गेटिंग रिड of a strong feeling by engaging ourselves in some activity. So if we are engaging ourselves in some activity, then you can utilize work off. और अगर आप normal workout कर रहे हैं तो वो workout बोला जाएगा, work off नहीं बोला जाएगा. चलिए, let's check out the first example. You really need a long walk to work off your nervousness before the test. तुम्हें एक लंबी वॉक की जरूरत है ताकि जो नर्वसनेस है उसको तुम हटा सको, जो कि टेस्ट से पहले हो गई है, बिफोर द टेस्ट, है ना. टेस्ट से पहले आपको एक लॉन्ग वॉक की जरूरत है ताकि तुम अपनी नर्वसनेस हटा सको. द साइकोलॉजिस्ट हेल्प मी वर्क ऑफ माई स्ट्रेस. सो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने हेल्प किया टू वर्क ऑफ माई stress, to get rid of that feeling, to get rid of the stress. I usually work off my negative feelings by working out. है ना, आ गया ना जो सबसे पहले मैंने लाइन बोली थी. तो मैं यूजुअली अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे हटाती हूँ? हाउ डू आई गेट रिड ऑफ द नेगेटिव फीलिंग्स? बाय वर्किंग आउट, बाय डूइंग सम एक्सरसाइज, राइट.
So these are the examples of work off. Work against, something working against you, right? आपके खिलाफ कोई चीज जा रही है ना, तो work against बोला जाता है. चलिए, to cause disadvantages or contribute to a negative result for someone. खिलाफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा आपके लिए वो चीज. एग्जाम्पल चेक करते हैं. हर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज वर्क्स अगेंस्ट हर फैमिलीज हैप्पीनेस. उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना मैरिज की तरफ, वो उसके लिए नेगेटिवली काम करता है, उसके लिए डिसएडवांटेज कॉज करता है. इसके लिए बेसिकली उसकी जो फैमिली की खुशी है ना, तो वो उसकी और उसकी फैमिली की खुशियों के अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट? योर इनएक्सपीरियंस विल वर्क अगेंस्ट यू ड्यूरिंग द नेक्स्ट जॉब रिक्रूटमेंट. जो आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना, दैट विल वर्क अगेंस्ट यू, ये आपके खिलाफ काम करेगा जब आप नेक्स्ट जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे. तो कहते हैं ना कि ढंग से काम कर लो, नहीं काम करोगे तो अगली जॉब में दैट थिंग विल वर्क अगेंस्ट यू. So that is how you use work against. I have never liked her emotional immaturity. मुझे कभी भी उसकी emotional immaturity पसंद नहीं आई है. Which will soon work against her in everything she does. जो भी वो करेगी वो soon उसके against काम करेगी. Alright? Now, this was all about work against. So, this was all about work against. So, ये सारे हमारे क्या हो गए? Common phrasal verbs that are utilized with work. जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, I would recommend them to subscribe because I would be coming up with lot many videos, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हो, या आपके बिजनेस इडियम्स हो, बहुत से इंफॉर्मेटिव सेशंस. एंड मैं आपके आइल्स से रिलेटेड सेशंस पे भी बहुत जल्दी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जो आपको आगे आइल्स के एग्जाम, जो लोग आइल्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनको कोई हेल्प चाहिए है, तो उनको वो वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर रेगुलर वीडियोस. एंड अगर आप मेरे शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं तो आप शॉर्ट्स पे जाके रेगुलरली रोज कुछ नया सीख सकते हैं. मैं इडियम्स डाल रही हूँ, इडियम्स यानी कि मुहावरे. मैं डेली कोई ना कोई नए वर्ड्स पिकअप करके जो आपकी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज्यादा एनरिच और एनहांस कर सकते हैं. मैं वो वर्ड्स, वो वोकैब बेसिकली एंड इडियम्स डेली पोस्ट कर रही हूँ. आपसे एक रिक्वेस्ट है दैट प्लीज लाइक करिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है जब आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. सो इट हेल्प्स मी टू come up with such informative content for you. Stay tuned till then. Thank you.